Hello everyone, good morning. So today in this video, I am going to talk about one of the most controversial topic, which is 1947 partition. So as we all know that we have got independence as in the form of division, or I can say partition, where most of our leaders and freedom fighters were celebrating the independence of the nation. Meanwhile, on the other hand, most of the people of the country were indulged in communal violence, communal riots, killing mass of the people. So, what was the reason behind all this mess? And what were the consequences of this partition? We will going to talk about all these things in this particular video. So, it has started by the theory proposed by one of the most well-known public face, Muhammad Ali Jinnah. He was the leader of one of the most famous party back then, Muslim League, which specifically supervised the ideas and issues belongs to Muslims. So Muhammad Ali Jinnah proposed a very well-known theory which is known as two-nation theory. It basically states that India is consisted of not one but two people, Hindus and Muslims, which are different in various perspectives like traditionally, culturally, however historically too, and therefore they both require two separate nations. तो यहाँ पे आप आइडियोलॉजी के हिसाब से जान सकते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद अली की आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी कि जो भारत है इसमें दो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और चूंकि ये दोनों बहुत ही आपस में अलग हैं, इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, सो देयरफॉर दे बोथ required different nations. They can't live with each other in a society. They can't live a societal life with each other. So after this theory, many Congress leaders and many parties have opposed their demands and their ideas of forming or establishing a new nation. But however, eventually their demand has been completed in the form of a new nation which is now known as Pakistan. So in 18th of July 1947, a very well-known act was passed by British Parliament, which is Indian Independence Act of 1947. So basically this act stated two different things. पहला कि जो ब्रिटिश राज है, जो ब्रिटिश रूल है, अब वो समाप्त होता है और इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाता है, और दूसरा कि इंडिया विल बी डिवाइड, इंडिया का डिवीजन होकर रहेगा. ये 18 जुलाई को पास कर दिया गया था ये एक्ट, एंड 22 जुलाई को इसे ऑफिशियली घोषित कर दिया गया था सभी के सामने. तो आफ्टर दिस बिगेस्ट अनाउंसमेंट बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया, ये पार्टीशन का, ये न्यू नेशन फॉर्मिंग के आइडियाज़ का, इस आइडियोलॉजी का बहुत अपोज किया, इसके बहुत ही विरोध गए सभी लोग, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया, और ये भी आगे चल के हम लोग इस चीज़ों के बारे में भी जानेंगे. तो अभी मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहती हूँ इन सभी चीज़ों के बाद, ये सारी चीज़ें बताने के बाद, कि क्या इतना सारी चीज़ें सिंपल थी? क्या अनाउंसमेंट के बाद बस पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, बाउंड्रीज तैयार की गई और बस सब चीज़ नॉर्मल? क्या ये जो नफरत फैली गई थी धर्म के आधार पर, क्या ये ख़त्म हो गई थी? वॉज इट ऑल दैट सिंपल? द आंसर इज़ नो, एब्सोल्युटली नो. हमारे लीडर्स, अगर पार्टीशन के बारे में ही अगर मैं बात करूँ, तो हमारे लीडर्स had faced many challenges, many problems while during the process of partition. So there were three major challenges. पहला ये था कि हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया था कि पार्टीशन जो होगा वो रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे होगा. सो नाउ व्हाट वाज दिस प्रिंसिपल? ये जो प्रिंसिपल है इसके आधार पे ये बताया गया था कि जो पूरा इंडियन नेशन है, इस पूरे इंडियन नेशन में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी में रहती है, वो सारे के सारे एरियाज पाकिस्तान के अंडर में आएंगी. बट was it possible? Was it good for a long term planning? No. The answer is no. अगर मैं आप ही से कहूँ इंडिया का मैप इमेजिन करने के लिए, और आपसे कहूँ कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे हमारे पूरे देश के मुस्लिम रहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आप ऐसी जगह बता सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ऐसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती. हमारे देश में मुस्लिम्स हर जगह रहते हैं, और उस समय भी यही हाल था. उस समय भी हमारे देश में मुस्लिम्स हर जगह रहते थे. तो क्या हर एक जगह जहाँ जहाँ भी रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के अंडर में आ जाता? इस तरीके से तो इंडिया के अंदर पैचेस बन जाते और इंडिया कभी यूनाइट ही नहीं बनता.
इंडिया के बीच बीच में कहीं पाकिस्तान आ जाता, तो क्या पॉसिबल था ये? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उस वक्त बड़े बड़े प्रोविंसेस, बड़े बड़े एरियाज ढूंढे गए जहाँ पे मुस्लिम अधिकतर मेजॉरिटी में रहती हैं, और ऐसे दो बड़े बड़े मेजॉरिटी में एरियाज हम लोग को मिले। उसमें से आज का वही पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और अभी का बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, जो पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो ये तो मैं आपको प्रॉब्लम भी बताई और साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताते गई। ये तो पहला प्रॉब्लम था हमारे लीडर्स के सामने जो आया था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये जो प्रिंसिपल था, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ वहाँ वो पाकिस्तान के अंदर में आ जाएगा वो एरिया। लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी एरियाज, बहुत सारी ऐसी भी थी जहाँ के लीडर पाकिस्तान के अंडर आना ही नहीं चाहते थे, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है NWFP का, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये जो प्रोविंस था वो अभी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। इट नाउ लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, जिसे उस वक्त मोहम्मद अब्दुल गफर खान जो थे वो लीड करते थे, जिन्हें बहुत ही फेमसली इनका एक निक नेम भी दिया गया, विच इज़ गफर फ्रंटियर गांधी। तो उस वक्त ये जो थे ये इस पूरे प्रोविंस को लीड करते थे। तो पार्टीशन के ये पार्टीशन के एकदम खिलाफ थे। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, इवन इफ ही वॉज अ मुस्लिम। लेकिन बाद में चल के इनके आवाज़ को दबा दिया गया और आखिरकार इनके प्रोविंस को भी पाकिस्तान के अंडर आना ही पड़ा। और इसी तरीके से अब्दुल गफर खान के ही जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और उनके वॉइसेस को, उनके आवाज़ों को दबा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक अलग नया नेशन को फॉर्म करने के लिए। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तीसरे मेजर